or co-terminal. Theta is the angle. Theta is in between 0 and pi. So A dot B equal to AB cos theta, and this is scalar. Okay, this vector is scalar. This answer is scalar because mod A, mod B, and cos theta yesterday I explained. So you can write like this also. Both must be co-initial or this also you can use dot product. A dot B equal to AB cos theta. But if the vector is like this, one is terminating and one is initiating from O, see different direction terminal, then you just extend the one vector side, this B vector, extend the vector B and give the direction from B to B dash, suppose. Then this angle is theta, this angle is theta, and this will be pi minus theta. Then in these two vector OA, OB dash and OA we can use. So in case of this, A dot B will be defined as mod A mod B cos pi minus theta. This is very important thing, pi minus theta, when one is initiating and another is terminating at the same point. O पर terminate हो रहा है B वेक्टर और O से initiate हो रहा है A वेक्टर, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा. इस कंडीशन में हम लिखते हैं A डॉट B इक्वल टू माइनस AB cos theta. Minus is also scalar, real number. So for this we can use this formula, for this we can use this formula, for this we can use this formula. Three different conditions. Take the screenshot. Remark: if A equal to 0 or 0 vector or B equal to 0 vector, then theta is not defined. And in this condition, A dot B is defined as A dot B equal to 0. बिकॉज अगर दो वेक्टर में से एक वेक्टर 0 वेक्टर हो जाएगा तो थीटा कैसे बनेगा? थीटा के लिए हमको क्या चाहिए? दो वेक्टर्स चाहिए. इसलिए थीटा ऐसी कंडीशन में डिफाइन नहीं होता, बट ए डॉट बी डिफाइन होता है. अगर एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. बिकॉज ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी 0 वेक्टर हो जाएगा तो मॉड 0 0 हो जाएगा, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा. उसके बीच में थीटा डिफाइन नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है. इफ A is perpendicular to B, then theta equal to 90 and cos 90 कितना होता है? 0. Therefore A dot B will be 0. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो A dot B 0 हो जाएगा. Third, if theta equal to pi means like this, OA and OB, A and B are equal and opposite, OA and OB. This angle is pi. Then A dot B equal to minus AB cos minus AB. Cos pi is minus 1. A dot B equal to minus AB because cos pi is minus 1. Geometrical meaning of dot product.
their geometrical meaning are very important because these are used in different chapters like in straight line, in plane, and in cross product also, combination of dot and cross product also. So the meaning of geometrically dot product क्या represent करता है? What do you mean by A dot B geometrically? ऐसा किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा भी ऐसा, प्रूव इट एंड ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन इट ज्योमेट्रिकली, ऐसा स्टेटमेंट साथ में आपको किसी क्वेश्चन में मिल सकता है। तब वहां आपको क्या लिखना होगा उसको समझाने के लिए हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर वेक्टर बी ओ ए एंड ओ बी, ओके, these are the two vectors जो अभी अपने थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग OA and OB are two vectors and theta is the angle। अब इसको ज्योमेट्री से रिलेट करने के लिए मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप जानते हैं ज्योमेट्री के अंदर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, इधर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब दोनों वेक्टर से अपोजिट वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उनके BL and AM are perpendicular to the opposite vectors, B से A वेक्टर पर, A से B वेक्टर पर। OB वेक्टर का मॉड B वेक्टर हो जाएगा, मॉड ऑफ OB वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ B वेक्टर इक्वल टू B इक्वल टू A वेक्टर का मॉड इक्वल टू A, मतलब OB इक्वल टू B हो गया और OA इक्वल टू A हो गया। ये इसकी लेंथ हो गई है, यहां से अंत की लेंथ स्मॉल है और यहां से अंत की लेंथ स्मॉल b है। ब्लर हो गया, नाउ in right triangle OLB, if I ask you to write in right triangle OLB cos theta, because in dot product we are using cos theta, just see here A dot B formula was written, A dot B equal to AB cos theta, just removed here. So in right triangle OLB, if you use cos theta, you will get opposite adjacent upon hypotenuse. So you will write here OL, okay, OL upon OB, but OL will remain same and OB equal to B, just अभी ऊपर बताया OB तो B है, therefore OL equal to B cos theta हो जाएगा। Now since we know A dot B कितना होता है, अभी पढ़ा हमने AB cos theta, इसमें ये जो B cos theta वो किसके इक्वल है, बाय 1 देखें तो आप किसके इक्वल मिल रहा है आपको, OL। सो A dot B डिवाइड बाय A इक्वल टू OL हो जाएगा। और ये जो OL है ना, इसको देखो ये क्या चीज है OL, एक्चुअली OL वेक्टर B के जो टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट है उससे वेक्टर A पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके बीच का एक टुकड़ा है, एक सेगमेंट है, एक शेडो है, और इस शेडो को ही बोला जाता है प्रोजेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करने में करते हैं। कॉस थीटा का मतलब भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में तो यूज करते ही, या वर्क डन और इधर कहीं ना कहीं भी यूज होता है फिजिक्स में। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये नया वर्ड है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेडो। तो मैं उनके हिसाब से इस चीज को ऐसे समझाऊंगा, मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है और ये एक दूसरी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इस वेक्टर का इस लाइन सेगमेंट पर प्रोजेक्शन फाइंड करना, मतलब इसकी शेडो इसके ऊपर पड़ती है। मान लो ऊपर सन है तो इसकी शेडो इसके ऊपर आएगी ना, तो इसका एक टुकड़ा इसके ऊपर आएगा, इसकी शेडो इस पर एक बनकर आएगी। सो इट इज ए स्केलर, प्रोजेक्शन इज ए स्केलर। तो वो जो इसका टुकड़ा या इसका एक शेडो इस पे जो बनकर आएगी, जिसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं? उसको फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि इसके दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस लाइन के ऊपर। दोनों एंड पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर, तो जो टुकड़ा इस पे मिलेगा आपको उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन और शेडो। तो ऐसे इसमें भी किया हुआ, देखो आप ओ बी वेक्टर के बी पॉइंट से परपेंडिकुलर है और ओ से ओपी परपेंडिकुलर है, तो अंदर चला गया, दिख नहीं रहा है, तो एक ही टुकड़ा आ गया ओ एल। तो ओ एल क्या है,
वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन है। मतलब अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करो, मतलब उस वेक्टर की शेडो दूसरे वेक्टर के ऊपर फाइंड करनी है, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर फाइंड करनी है, एक वेक्टर पे फाइंड करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल कर जिस पर शेडो फाइंड करनी हो, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो, उसके मॉड से डिवाइड कर दो। देखो आप ए डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डिवाइड में क्या लिख रहा हूं ए, तो बी का ए पर प्रोजेक्शन है, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, तो ये क्या हो जाएगा ओ एम, ये लिखेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर हम ये राइट ट्रायंगल कंसीडर करते ओ ए एम, तो इसमें ओ एम ये आ जाएगा। तो जब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं तब हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन, बस दिस वर्ड इज इनफ। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब जब डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब आप ये समझ लेना है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। और आप देख सकते हैं वेक्टर को उसके मॉड से अगर हम डिवाइड कर दें इसको अलग अलग, तो ये एक केप बन जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। समटाइम आपको मिलेगा बुक में भी। सो ए वेक्टर अपॉन ए डॉट बी, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओ एल, और ए वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस कितना हो जाएगा ए केप डॉट बी। ये भी कभी कभी यूज होता है, इसमें रेड पेन से लिख दिया है कोई प्रोजेक्शन के लिए। मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, किस पर, जिस पर आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लो, गिवन वेक्टर के साथ में। गिवन वेक्टर के साथ में जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Now properties of dot product, properties of dot product, इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है। और वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको जो विरासत में जो नॉलेज मिला हुआ है एलजेब्रा का, वो कहीं कहीं इसमें फेल हो जाता है, तो ध्यान रखें। लगता है ऐसे ही कि सर वैसे ही है जैसे हम तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वैसे ही इसमें भी है, तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ जगह पर गलत हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स यू कैन राइट ए डॉट बी एज बी डॉट ए, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इज इट करेक्ट और नॉट? अगर आपको मैं ये चीज नहीं बताता हूं तो आप ये गलती एग्जाम में कर सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, कैन वी राइट लाइक दिस मैसेज? यस, नो, वी कैन नॉट राइट। ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर है, स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर में और वो भी डॉट के साथ में, ऐसा कभी नहीं होता मैथ्स में। 5 डॉट ए, ये क्या है? मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं है मैथ्स में। एक वेक्टर है और एक स्केलर, उसके बीच में डॉट लगा रखा है, सो इट इज मीनिंगलेस। इसलिए ऐसा नॉट पॉसिबल है, ये होता ही नहीं है प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट पॉसिबल। जान करके लिखी मैंने, नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग।
सो ए डॉट बी डॉट सी को आप ए डॉट बी डॉट सी नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता है, ये मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस चीज लिखी भी है मैंने, ये समझाने के लिए लिख दिया है। नहीं तो अभी आप अपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा का रूल लगा दोगे तो सब सही है आपके हिसाब से, जो कि इसमें गलत है। देन थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए क्रॉस, सॉरी नॉट ए क्रॉस, ए डॉट, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो अभी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ए डॉट बी प्लस सी, यू कैन राइट इट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। ए को पहले बी को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है, तो ए डॉट बी डॉट ए लिख सकते हैं। सो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा भी हो सकता है। ए प्लस बी डॉट सी, यू कैन राइट ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट ए, ए डॉट ए, अगर आप ए डॉट ए लिखेंगे तो उस कंडीशन में कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो, और कॉस जीरो होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो गया, जिसको सिंपली ऐसा भी लिखा जाता है स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड। जनरली ये नोटेशन ए स्क्वायर आपको वेक्टर्स में नहीं मिलेगा, जब जब आप ऐसा स्क्वायर लिख रहे हैं वेक्टर पे, इसका मतलब है उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अगर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा वेक्टर के साइन के साथ में, तो आप उसको कैसा लिखेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अगर आपने एक्स वेक्टर का स्क्वायर लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक्स वेक्टर का स्क्वायर लिख दिया तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स। बट ऐसे एक्स क्यूब डिफाइंड नहीं है इसमें, ए क्यूब डिफाइंड नहीं होता है कि सर ए क्यूब भी लिख लें क्या हम, नहीं, क्योंकि ए क्यूब का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। ए डॉट ए लिख नहीं सकते, 3 बार डॉट लगता नहीं, 2 बार डॉट लगता नहीं 3 वेक्टर के बीच में एक साथ, ठीक है। अभी बताया ना मैंने आपको, ये नहीं लगता इस तरह से, तो ए क्यूब नहीं आता इसमें, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं बनता इसमें। इसमें फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेगा, वो मैं आगे लिखाऊंगा, अभी आगे लिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वेक्टर को उसके मॉड के स्क्वायर से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है यहां पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट्स की टर्म में लिखना है। अभी अपन ने यहाँ पर वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली लिखे हुए हैं सब, मतलब उनको सपोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से बता रखा है। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स के टर्म में, जैसे कंपोनेंट्स आता है ना, मतलब वेक्टर्स किस में आ जाएंगे, आई जे के में, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, बी वेक्टर ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। ऑल ऑफ यू नो, अगर हम ये आई जे के लिख रहे हैं तो ये कोफिशिएंट्स ए वन बी वन सी वन डी आर एस है, ए टू सी टू डी आर एस है। किसके डी आर एस है, इंटर ए के और वेक्टर बी के, और इनको कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। तो अगर ए और बी इस तरह से दो वेक्टर्स दे रखे हैं तो हम ए डॉट बी कैसे फाइंड करें, ठीक है। पहला चीज ये हमारे पास ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखने के लिए पहले वेक्टर ए एंड बी लिख के लिखा है यहाँ पर। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे के टू इटसेल्फ, मतलब आई जे के का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ में हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर होता है, मॉड ए स्क्वायर होता है, तो ऐसे अगर हम आई डॉट आई आएगा तो कैसे लिखेंगे उसको, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें। तो इसके लिए पहले इधर लिख देता हूं मैं,
आई डॉट आई मॉड आई का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1, इस वाले फॉर्मूले से आई डॉट आई मॉड आई का स्क्वायर, मॉड आई कितना हो जाता है 1 होता है, मॉड आई यूनिट वेक्टर होता है इसलिए, तो 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे कितना हो जाएगा, मॉड जे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, डॉट के 1। सो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये 1 1 1 आ गए तीनों। ओके, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि ए और बी दो वेक्टर्स अगर होते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा 90 हो जाता है, तो कॉस 90 0। अगर हम आई का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, उसको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। आई जे के फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं और ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड भी बोलते हैं। इसका मतलब समझा रहा हूं, ये क्या है, ये आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, के जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं आई डॉट जे की बात करता हूं तो मॉड आई मॉड जे कॉस 90 लिखूंगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, और कॉस 90 0 होता है, तो दिस इंप्लाइज आई और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। सिमिलरली जे और के का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, और के और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आई डॉट आई 1 होता है, बट आई डॉट जे 0 होता है। आई सेम अगर है तो 1 है, और डिफरेंट है तो 0 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक टेबल की हेल्प से देखो, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, आई जे के, आई जे के, और यहाँ डॉट लगा देते। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। ये डायगोनल देखो 1 1 1 आ गया, बाकी सब 0 0 0 है। मतलब इससे याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, जिससे हम डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज मतलब आईजे के से रिलेटेड इसमें एक साथ याद रख सकते हैं। सेम है तो 1, डिफरेंट है तो 0, ऐसे याद रखो, क्योंकि आईजे के परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। ऑर्थोनॉर्मल मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ट्राइड का मतलब 3 है, इसलिए ट्राइड वर्ड यूज होता है। ए डॉट बी A1I प्लस B1J प्लस C1K, A2I प्लस B2J प्लस C2K। अगर हमको इसका डॉट प्रोडक्ट लगाना है, फाइंड करना है, तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लो गया, तो देखो इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई होगा, क्योंकि A1 और A2 स्केलर हैं,
स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद वेक्टर की थ्योरी पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बोला था स्केलर की बहुत बुरी हालत होती है, एम इंटू एन लिख के बताया था, एन इंटू एम, एम इंटू एन, एम एन को बाहर कर दो। ओके, तो A1 A2 को बाहर कर देंगे और I और I का डॉट प्रोडक्ट होगा, और I और I का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, I डॉट I कितना होता है अभी बताया, 1 होता है। इसलिए मैं इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ A1 A2 ही लिखूंगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, A1 B2 I डॉट J, और आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे आई डॉट से आई डॉट के भी कितना होता है, 0 होता है, इसलिए उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ A1 A2 आएगा इधर। सिमिलरली अब B1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 B2 आएगा, और C1 के साथ करेंगे तो C1 C2 आएगा। ये स्टूडेंट को कई बार समझ में नहीं आता ये A1 B1 बाकी सारी टर्म कहाँ गई, वो इस टेबल से समझ लो, आप इस कंपोजिशन टेबल से समझ लो। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सेम है तो 1 है, डिफरेंट है तो 0 है, इसलिए डिफरेंट के साथ में सब 0 हो जाती है टर्म। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीन टर्म ही बचती है, 9 टर्म आएगी ना, बाकी 6 टर्म खत्म हो जाती है, 0 0 हो जाती है। दिस इज A डॉट B इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के टर्म में ही, जो इससे पहला वाला पॉइंट नंबर 6 था ना, पॉइंट 6, वही प्रॉपर्टी 6, ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी 6 का ही पार्ट मान लो आप इसको। तो ये ए डॉट बी, मैंने वहां पे सिर्फ ए और बी लिखे थे, देखो वहां पर कंपोनेंट्स फाइंड करने के नहीं बताया, क्योंकि ये नहीं बताया था पहले, ये बताना था इसलिए। अगर हमको एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ओके, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, कॉस थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी स्केलर है तो डिवाइड में लिख सकता हूँ स्केलर को। वेक्टर्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखे जाते, ए अपॉन बी ऐसा कोई नोटेशन नहीं होता वेक्टर्स में, पर मॉडुलस में लिख सकते हैं। मॉडुलस इज ए रियल नंबर, मैग्नीट्यूड होता है वो, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला है कॉस थीटा ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। हेलो हेलो हेलो, नाउ ऑडिबल? हेलो, ऑडिबल नाउ? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? ओके, क्लियर। सो ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन हम ए डॉट बी को ये लिख सकते हैं, देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अभी बताया मैंने, ए डॉट बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये किस में दिए, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको ए और बी वेक्टर दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब ए वेक्टर ऐसे लिखा है A1I B1J प्लस C1K, और बी वेक्टर A2I प्लस B2J प्लस C2K, सपोज ऐसा वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, देन कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम? तो ऊपर तो ए डॉट बी आएगा, और ए डॉट बी अभी मैंने आपको समझा दिया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 आएगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में इनका मॉड, मॉड है कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करी है हमने, एक 10.2 एक्सरसाइज में इनके मॉड बताए थे मैंने, और पूरी थ्योरी पढ़ ली है अपन तो। कैसे फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या करेंगे, रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, डिवाइड में इसका मॉड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म है स्क्वायर रूट वाली,
इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होगा और बहुत बार यूज होने वाला है, बहुत जगह यूज होता है, और इस पर 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा या इसके रिमार्क यूज होंगे। एक बार और बोलता हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये वाले फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा जिसमें इसके रिमार्क या ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके रिमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कम से कम नहीं 5 बार, ओनली 5 टाइम्स में इसको लिखूंगा अलग अलग थ्योरी में, क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, प्लेन के अंदर, स्ट्रेट लाइन और प्लेन के अंदर, आगे की जो भी थ्योरीज आएंगे, और उनके सबके रिमार्क्स भी इसी से मिलते जुलते हैं। और इसलिए इस फॉर्मूले का मैंने नाम रख रखा है चम्मच फॉर्मूला। अपने बीच की बात है, डोंट राइट इन बोर्ड एग्जाम यूजिंग चम्मच फॉर्मूला ना, हाँ, नहीं तो चम्मच भर नंबर मिलेंगे फिर थोड़े से। क्या बोला मैंने इस फॉर्मूले का नाम, कोई बताएगा? लिखकर बता दो कौन सा फॉर्मूला है, ये अपने बीच की बात है, ताकि मेरी बात समझ में आई, पता तो लगे। 3-4 स्टूडेंट लिखो, सुन रहे हो तो, किसी से पूछूंगा और जवाब नहीं आएगा तो पता नहीं लगेगा। हाँ, चम्मच फॉर्मूला, ठीक है, वेरी गुड, मतलब कुछ बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो देखो, चम्मच फॉर्मूला इसलिए नाम दिया कि दो स्क्वायर रूट का जो साइन है ना, मुझे ये चम्मच जैसा दिखता है, चम्मच जैसा है ना। अब आप कुछ भी लॉजिक वगैरह सर कुछ भी कर सर, ऐसे मत बोलना है ना, मुझे पता है तुम लोग उड़ाने की आदत होती है टीचर की भी, पर मेरा तरीका है, मुझे आपको कैसे भी आपके माइंड में याद करना है, क्योंकि मैंने इतनी बातें और इतनी भूमिका बनाई इसलिए अभी कि आगे मुझे याद दिलाने में इजी रहेगा। चम्मच फॉर्मूला याद है ना, 4-5 बच्चों से लिखवाया भी था, वही वाला फॉर्मूला है, कितनी बार यूज हो गया देखो, तो आपको तब लगेगा समय भी इस आदमी ने बोला था, ध्यान से समझ लो, आगे रिग्रेट करने से कोई मतलब नहीं है, अभी सोच लो, अभी समझ लो ढंग से। तो ये फॉर्मूला दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने में यूज होता है। इसके दो रिमार्क भी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो। सॉरी, कल क्लास नहीं लूंगा मैं, सुन लेना आप ध्यान से। ये कितने स्टूडेंट चले भी गए इसमें से, देखो कितनी जल्दी रहती है भागने की। मैं कुछ बात करना चाह रहा था उससे पहले भागे। मेहुल एंड अदर्स, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं क्या? हाँ, 2-3 स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। मेहुल, बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। कल क्लास नहीं लूंगा मैं, मंडे को लूंगा क्लास, ठीक है। इसके रिमार्क बहुत नहीं, मंडे को हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने कुछ वर्क आपको दिया है, शाम को 7 बजे हम लोग मिल रहे हैं, जब तक आप वर्कआउट करें, एक दूसरे से डिस्कस कर लें। अगर आपको लगता है कि हमें ये करने में प्रॉब्लम है तो आप अपने हिसाब से मुझे कुछ बता सकते हैं कि सर हम इसकी जगह ये वाला कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो भी नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए मीनिंगफुल है कोई भी चीज। मैंने आप लोगों के लिए वर्क किया, ढूंढा इधर उधर से, जैसा भी जो भी था, और मैंने डिवाइड करके दिया है, क्योंकि ऐसे बोलते पता लगता है एक ही प्रोजेक्ट 25 है, 5-5 के ग्रुप में 5 प्रोजेक्ट, 5 वही कर रहे हैं सब, सबको एक दूसरे से कॉपिंग इधर से उधर फैला देते हो, और सब मजा नहीं आता उसको। तो इसलिए आप एक दूसरे से थोड़ा उस पर कोशिश करें, अपने लिए ट्राई करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एनेक्सस सेकंड दिया है ना, मैंने आपको शेयर किया है, सर्वर नंबर 33 ऑफ सीबीएसई का, पेज नंबर 6-7 जो पर है उस पर है शायद वो, उसको आपको उस वाले पेज से रिलेट करके मिल सकता है इन से पॉइंट्स में, ये सोच के रखना है। आप इतना जरूर सोचना है कि ये जो सर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है ये किससे को रिलेट हो सकता है, थोड़ा बहुत भी कुछ भी मिलेगा उससे ना, तो अपन वाला नंबर डाल देंगे उसके अंदर, ये अपन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वर्क करना है कि सर हम पांचों के हिसाब से ये प्रोजेक्ट हम इस एक्टिविटी के इस वाले नंबर में डाल सकते हैं सीबीएसई के सर्कुलर से। उधर साइड में उन्होंने सब लिख रखा, तो उसको थोड़ा पढ़ लेना, पेज नंबर 6 और 7 मैंने बता दिया है। सर्कुलर हर ग्रुप मेंबर को नहीं, ग्रुप लीडर को मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप प्लीज शाम को 7 बजे तक थोड़ा वर्कआउट करके रखें, इसके ऊपर कुछ स्टफ तैयार करके रखें अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, बाय, लिमिटिंग।